So hello guys, welcome back to my YouTube channel Study Hurt. If you are new here, please do subscribe with the notification bell. It would mean a lot to me. So I hope you would like my previous part of chapter 6 Stuffing of Business Studies. So today I am here with economics chapter 9 Environment and Sustainable Development. This is a chapter of Indian economic development and it's a very easy chapter and you can very easily relate to this chapter, so that's why I've taken up this first. And this is a very interesting chapter because this is just based on the natural phenomena and your daily life, so you can very easily relate to it. So let's first know the meaning of environment. What is environment? Environment means it is the total. Actually ना ये chapter क्यों पढ़ना important है, इसमें environment है, we know what is environment, but when it comes to that we need to write it, it becomes very difficult for us to write down, right? So environment is referred as total, पहली important बात, that it is a total planetary inheritance, total planetary inheritance and totality. Here also we have used the same word of totality of all resources. So it means so here we have used totality two times, here as well as here. तो मतलब total तो you have to write. Planetary inheritance, जो हमने planet से inherit किया है, जो हमें already मिला है, जैसे sun हमें already मिला है, हमें forest already मिले हैं, and all resources मतलब water हो गया तुम्हारा, land हो गया और तुम्हारा sunlight हो गया, and many more resources. तो totality of planetary inheritance and totality of all resources. Environment में दो component होता है, first is biotic, second is abiotic. बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का क्या मतलब होता है आगे बताएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दीज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर. आई थिंक यू आर एबल टू सी कि दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर. ऑब्वियसली हम भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है. लेट्स से नॉन लिविंग थिंग्स कैसे आप लोग सोच रहे होंगे, बिकॉज हम लोग एक इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम में रहते हैं. अगर वी डोंट वर्क, then other systems, other ecological system would be you can say hampered. और अगर और चीजें hamper होंगी इकोलॉजिकल सिस्टम की, तो हमें भी प्रॉब्लम होगी. ओके, सो अब हमने पढ़ा है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है. अब आता है बायोटिक एलिमेंट्स. क्या होता है बायोटिक? होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एलिमेंट्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, प्लांट हो गया. आई नो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को फॉरेस्ट में कंफ्यूजन होती है कि वो बायोटिक है या अबायोटिक. तो ये बायोटिक है. सेकंड इज योर अबायोटिक. अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, वाटर, लैंड, रॉक. ये तो बहुत सिंपल है. और इन दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, राइट. सो ये तो बेसिक्स थे जस्ट. लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट. Functions and role of environment. Functions and role of environment. अगर क्वेश्चन आ जाता है why environment is so important, तो आप ये चार functions ही लिखेंगे environment के. Why environment is so important, तो indirectly वो functions of environment ही पूछ रहा है. तो ये चार functions हैं environment के. पहला है environment supply resources. Resources दो टाइप के होते हैं, renewable and non renewable. इन चारों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंड होता है environment sustains life. Sustains का मतलब क्या होता है, here sustains मतलब sustains का वैसे जनरल मीनिंग होता है सपोर्ट करना. तो environment सपोर्ट करता है लाइफ को. बच्चों मैंने ENV जहां भी लिखा है ये environment का मतलब है. थर्ड होता है environment assimilates waste. Assimilates waste मतलब यू कैन से स्टोर करता है, रिड्यूस करता है वेस्ट को, एब्जॉर्ब करता है वेस्ट को. फोर्थ है एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे एनहांस करता है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ. इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज. प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज किस लिए? प्रोडक्शन के लिए. तो पहला होता है रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, तुमने बहुत
छोटी मतलब 7th 8th में पढ़ा था कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीट। हम रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बीइंग डिप्लीटेड एंड एग्जॉस्टेड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उनकी हमें डर नहीं होता कि रिसोर्सेज डिप्लीट या एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं, जैसे ट्रीज हो गया, फिशेज हो गया, या फिर तुम्हारी सनलाइट हो गई, राइट। सेकेंड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिन रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे विद देयर एक्सट्रैक्शन, अगर उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या अगर उन्हें हम यूज करेंगे। तो जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जॉस्ट का क्या मतलब होता है? फिनिश। एग्जॉस्ट का मतलब होता है फिनिश। आई एम राइटिंग हियर, एग्जॉस्ट मींस फिनिश। तो जो रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे उनके एक्सट्रैक्शन से, उनके यूज से, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मानते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल बहुत ग्रेट एग्जांपल है। अगर आपको राइटिंग समझ ना आ रही हो, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग, सो यू कैन मेक योर नोट साइड बाय साइड आल्सो, राइट। थर्ड पॉइंट आता है इसके इस हेडिंग के अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जनरली बच्चे यही पॉइंट भूल जाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट आर यूज्ड एज इनपुट्स। ये हम इनपुट्स मानते हैं ऑब्वियसली। अगर जैसे हम हमारा ये एनवायरनमेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एनवायरनमेंट ने जो रिसोर्सेज दिए वो ये हमारी इनपुट्स है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो आउटपुट है। तो जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट हमें देता है उन्हें हम क्या मानते हैं? इनपुट्स मानते हैं। क्या मानते हैं? इनपुट्स मानते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। यही थोड़ा बड़ा था, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं। एक सेकेंड। सेकेंड है आपका एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन है। जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की, एंड ये CONS मैंने इधर कंजम्पशन लिख रखा है। तो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, उससे वेस्ट जनरेट होता है। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उससे वेस्ट जनरेट होता है, अगर हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं उससे भी वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ बनाना कंज्यूम किया तो जो उसका छिलका होगा वो वेस्ट हो जाएगा। अगर हमने कुछ प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्रीज से पेपर प्रोड्यूस किया, तो जो उसके एक्सटर्नल बार्क्स होती हैं और जो इंटरनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर वगैरह, वो सब वेस्ट माने जाते हैं। बट वो सेकेंडरी यूज में आ सकता है, बट फॉर दैट सिचुएशन इट इज अ वेस्ट। बट वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस रिसोर्सेज, बाय द वे। तो ये जो प्रोसेसेस हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, उनके वेस्ट जनरेट होता है। ये कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एसिमिलेट का मतलब एब्जॉर्ब है। तो इन दोनों प्रोसेस के जो भी वेस्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप लोग बोलोगे और कोई प्रोसेस नहीं होता जिससे वेस्ट जाता है? वो जनरली मेनली ये दो होते हैं और कोई नहीं है। ठीक है, आई होप ये बहुत क्लियर होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। थर्ड आता है हमारा एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। मैंने बताया एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन्स का क्या मतलब है? सपोर्ट। एनवायरमेंट सपोर्ट करती है लाइफ, क्योंकि एनवायरमेंट हमें बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे आपका सन हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। और ये सब प्रोवाइड करती है। क्यों? कि वो कैसे प्रोवाइड करवा पाते हैं? क्योंकि पार्ट है एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट सपोर्ट्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, क्योंकि बेसिक्स हैं और ये हमें कौन? एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर ये पॉसिबल नहीं होंगे तो वी कैन नॉट लिव। तो एनवायरमेंट सपोर्ट करती है लाइफ। फोर्थ पॉइंट आता है इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज मतलब इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब एनवायरमेंट में फॉरेस्ट होते हैं, ग्रीनरी होती है, ट्रीज होते हैं, इन सब से हमें नर्चर करते हैं, हमारी हमें पीस देती है, हमें मतलब यू कैन से मेंटल पीस बहुत मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो और ये इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो वही बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट लैंड फॉरेस्ट वाटर इंक्लूड करता है, सिंस पीपल एंजॉय सीनिक ब्यूटी। कैसी ब्यूटी? सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट, देयरफॉर द एलिमेंट्स हेल्प इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बहुत सिंपल मैंने लैंग्वेजेस में लिखा है, सो इसलिए आई होप इट्स अंडरस्टूड। The next topic is that
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में ये आएगा ही आएगा, इसे बहुत अच्छे से समझ के चलते हैं। बहुत सिंपल भी है, समझ आ गया एक बार तो ज्यादा टाइम लगे। द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन, the environment is able to perform these functions without any interruption as long as demands on these functions are within its carrying capacity. क्या वो बोल रहा है, वो बोल रहा है एनवायरनमेंट के जो हमने चार फंक्शंस ऊपर पढ़ी, मेजर चार फंक्शंस एनवायरनमेंट के, ये एनवायरनमेंट चार फंक्शन परफॉर्म बहुत इजीली कर सकता है। जब कब तक कर सकता है, जब तक ये चारों फंक्शन उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर, किसके अंदर, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर। कैरिंग कैपेसिटी के दो फेजेस है, फर्स्ट फेज ये है, हम इसे पहले पढ़ते हैं कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, जो रिसोर्स आपका एक्सट्रैक्शन है वो रिमेन दैट शुड रिमेन बिलो द रिसोर्स जनरेशन। ऑब्वियसली हम जितना अर्थ से रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स है, जितना हम फॉसिल फ्यूल्स मतलब सर्च कर रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड से फाइंड आउट कर रहे हैं, उतनी अगर अगर हम फॉर एग्जांपल 10 लीटर ऑफ पेट्रोलियम हम निकाल रहे हैं पर डे, फॉर एग्जांपल, मैं बहुत छोटा एग्जांपल आई नो, पर वो रिप्लेनिश अगर एनवायरनमेंट उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रही, मतलब उतना जनरेट नहीं कर पा रही पर डे, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर नहीं है, और उससे क्या होगा, उससे एनवायरमेंट क्राइसिस होगा, वो भी पढ़वाएंगे हम। सेकेंड आता है जनरेशन ऑफ वेस्ट, जो जनरेट हो रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर, मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब एनवायरनमेंट उतना एब्जॉर्ब कर सके कि एनवायरनमेंट अपने आप को हार्म, मतलब द कैपेसिटी विद इन विच इट कैन एब्जॉर्ब विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। If these conditions are not fulfilled, environment fails to perform its function obviously। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सस्टेनेंस आएगा, और एक वर्ड इधर लिखा हुआ है मैंने, एनवायरमेंट क्राइसिस, और एनवायरमेंट क्राइसिस आएगा बस। तो ये टॉपिक कैरिंग कैपेसिटी का लर्न करना है, उसके दो डायमेंशंस हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते तो वो अपने चार वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इससे एनवायरमेंट क्राइसिस आएंगे। अब आता है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का क्या मतलब है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट मींस द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, जितना वो वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकती है विदाउट कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरनमेंट को डैमेज करते बिना वो जितना एब्जॉर्ब कर सकती है उसे हम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब बात है रीजन, अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं एनवायरमेंट क्राइसिस के। पहला रीजन है आपका पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन, एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पॉपुलेशन बहुत एकदम राइज कर रही है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों एक साथ हुआ है, क्योंकि इस दोनों एक साथ हुआ है तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज आपकी बढ़ गई है। डिमांड फॉर रिसोर्सेज हैज बीन राइजन, बट देयर सप्लाई, और बट जो एनवायरनमेंट जितना रिप्लेनिश कर सकता है वो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है वो। तो इसकी वजह से उनके ओवर यूज और मिस यूज की वजह से एनवायरनमेंट के क्राइसिस आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर ओवर यूज एंड बिकॉज ऑफ देयर मिस यूज एनवायरनमेंट क्राइसिस हो रहे हैं। सेकेंड आता है एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट, हम ज्यादा से ज्यादा निकाल रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, क्योंकि इस प्रोसेस से एग्जॉस्ट, क्योंकि हम ये कर रहे हैं इसकी वजह से एग्जॉस्ट हो सकता है हमारे रिसोर्सेज, और हमारा बहुत सारा अमाउंट स्पेंड हो रहा है, मनी स्पेंड हो रहा है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में, इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में। तो इसकी वजह से भी एनवायरमेंटल क्राइसिस आ सकते हैं। बहुत जनरल पॉइंट्स है ये, तो बहुत जनरल पॉइंट्स है। कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा टेक्निकल है, वो जो बच्चा नहीं पढ़ के गया होगा वो नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज की जो प्रोडक्शन, जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, एंड कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन, जो एक्सटेंशन है रिसोर्सेज एक्सटेंड हो रहा है, तो पॉपुलेशन राइज हो रही है, उनकी वजह से एनवायरमेंट क्राइसिस आया है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है एफ्लुएंट, ये कंजम्पशन लिखा हुआ है मैंने, और ये जैसे मैंने पीछे बताया, और ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि एफ्लुएंट मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के तुम कंजम्पशन प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड हो चुका है, इसकी वजह से ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, और ये जो वेस्ट है वो विदाउट वो बियॉन्ड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एनवायरनमेंट की, जो हमने पहले भी पढ़ा। अगर ये फुलफिल नहीं होगा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, तो
हमारे एनवायरमेंट क्राइसिस आ सकते हैं, और वो हो भी रहा है अभी फिलहाल, राइट। देन आता है हमारा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू डेवलपमेंट, क्योंकि जो डेवलपमेंट, ये डीईवी मतलब डेवलपमेंट है। ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस has polluted the atmosphere, the and water, and there is decline in air and water quality, obviously क्योंकि डेवलपमेंट है, उन्होंने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर दिया है, तो इसलिए एयर एंड वाटर क्वालिटी हैम्पर हो चुकी है। इसकी वजह से क्या रिजल्ट हुआ है? इंक्रीज्ड इंसिडेंस रेस्पिरेटरी और वाटर बोर्न डिजीज हो रहा है, क्योंकि वाटर एंड एयर है, तो रेस्पिरेटरी और वाटर बोर्न डिजीज हो रहे हैं। द लास्ट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन है, तो बहुत जनरल पॉइंट है कि ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी हैं गवर्नमेंट की, इसकी वजह से भी आप बोल सकते हो एनवायरमेंट क्राइसिस है। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल जो कमीशन सेट होते हैं ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें गवर्नमेंट्स के हमारे पैसे स्पेंड होते हैं, गवर्नमेंट्स के जो मनी स्पेंड होता है, कमिटमेंट होती है फाइनेंशियल, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट पे बर्डन आता है, और इसकी वजह से एनवायरमेंट क्राइसिस होते हैं। So this was the part 1 of chapter 9, environment and sustainable development. Hope you would like this part. If you do like, then please give it up a thumbs up. Do like, share, comment, subscribe to my YouTube channel. It would mean a lot to me. And please, guys, you may feel free to comment down below for any doubts or any suggestion. So yes, thank you guys for watching till the end.